One. Yes. Okay, so before starting the class, there's a brief description that I want to tell you. मार्क ट्वेन जो आपके राइटर हैं यहाँ पर, जो स्टोरी है दैट इज 10 लाख नोट, बैंक नोट, ओके, और 1 मिलियन पाउंड नोट, ठीक है। बोथ द स्टोरीज गोज बोथ वेज, ठीक है। 1 लाख आपके इंडियन रुपीज करेंसी में रहेगा या फिर आप कह सकते हैं 1 मिलियन पाउंड, ओके। तो वो एक जो उनका स्टोरी था दैट वाज रिटन बाय मार्क ट्वेन, ही वाज अ राइटर बाय प्रोफेशन, ठीक है। he belonged to a place called फ्लोरिडा, ठीक है, दैट इज इन यूएसए राइट नाउ। तो यहाँ पर इनका जो बिलोंगिंग था, अपब्रिंगिंग था, वो फ्लोरिडा में हुआ, एंड ही वाज बोर्न ऑन November 30th, 1835. That is a brief description that I think that you are willing to know about the author of your story, ठीक है। जो ये स्टोरी है दैट इज अबाउट हेनरी एडम्स, ठीक है। हेनरी इज एन अमेरिकन पर्सन, ठीक है, and he is swept up in the sea on the Saturday same near San Francisco, यानी कि वहां पर वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वो सी में ट्रैवल कर रहे थे, जहां पर वो सैन फ्रांसिस्को वाले बीच पर चले गए थे। ओके, दिस इज नॉट वर्किंग। Okay, give me a moment. The screen is blank here on the desktop. Okay, let me share the story with you and then we can start discussing it here in the classroom itself. There are different parts of the story. Okay, so one by one you can read it and then we can go ahead and explaining. I'll explain all the paragraphs. So who is going to read first? Yes, ma'am. Yes, Ankit, start reading from here. When I was 27-year-old, I worked in an office in San Francisco. I did my job well and my future was promising. I was alone in the world and I was happy. On Saturday afternoons, I didn't work. I sailed my little sailboat on San Francisco Bay. One Saturday afternoon, I sailed out too far. The strong afternoon wind pushed my sailboat out of the bay into the Pacific Ocean. That night, when I had lost all hope, a small British brig saw me and took me on board. The brig was sailing in London. The voyage was long and stormy. I worked as a sailor to pay for my trip. When I arrived in London, my clothes were old and dirty. I had only $1 in my pocket. With this dollar, I ate and slept for the first 24 hours. During the next 24 hours, I didn't eat and I didn't sleep. At about 10 o'clock the following morning, I went to Portland Place. I saw Yes. a child walking past holding a big pear. The child ate one small piece and then threw the pear onto the street. I stopped and looked at it. I was very hungry and I really wanted that pear. But every time I tried to get it, someone passed by and looked at me. I quickly turned in the other direction and waited for a person to pass by. I tried again and again to get that pear, but the same thing happened. I was desperate. I decided to get the pear and not to worry about the people who saw me. At the moment, a gentleman opened a window behind me and said, "Come in here, please." A well-dressed servant opened the door. He took me to a beautiful room. There two old gentlemen were sitting and discussing something important. Their breakfast was still on the table. I was very hungry and I stared at their breakfast. I want to tell the reader that the two gentlemen had made a bet several days before. I knew nothing about the bet until later. Let me tell you what happened. Okay, let me explain here till then we can restart again. यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, देयर इज अ पर्सन, जहाँ पर यहाँ पर अभी तक उसका नाम आपको नहीं पता चला है, ठीक है। द स्टोरी फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू लंदन
पहला जो पार्ट है वो सैन फ्रांसिस्को से लंदन का जो सफर है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो द पर्सन नेम इज नॉट रिवेल्ड हियर, ठीक है। पहले पार्ट में अभी तक जो आपका पर्सन है उसका नाम नहीं बताया गया है, ओनली इतना ही बताया गया है कि वो 27 ईयर ओल्ड था, वो अपने कहानी खुद बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वो सैन फ्रांसिस्को के एक ऑफिस में काम करता है, ठीक है। उसका जॉब बहुत अच्छा चल रहा था, उसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग था। प्रॉमिसिंग मीन्स he could have a much better future and he was stable in life. He was alone in the world, maybe हो सकता है उसके पेरेंट्स नहीं हो, फैमिली नहीं हो, ठीक है। and I was happy and he was happy. तो आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून वो काम नहीं करता था, वो अपनी एक छोटी सी बोट थी उसमें, सेल बोट में सैन फ्रांसिस्को के बे में, बे मतलब होता है कि जो छोटा सा एक रिवर टाइप ओशियन का जो एक एरिया होता है जो लैंड के पास रहता है, ठीक है। बीच का किराना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बीच के किनारे वो सैन फ्रांसिस्को को आपस में बस बे के पास थी, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर नहीं सेल करता था वो, आसपास ही अपनी बोट को लेकर वो सेल करता था सैन फ्रांसिस्को के बे पर। लेकिन वन सैटरडे क्या हुआ कि उसकी जो बोट है वो थोड़ी सी आगे चली गई एंड जो आफ्टरनून स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, विंड्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हवा बहुत तेज चल रही थी और जो बोट था वो बे यानी कि किनारे के पास ना रहने के बजाय पैसिफिक ओशन की तरफ चली गई। उस रात को उसको लगा कि वो कभी भी दोबारा वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ब्रिटिश ब्रिग, ब्रिग मीन्स होता है यहाँ पर दो चीजों का मतलब होता है ब्रिग। पहला तो वो पर्सन जो प्रिजनर है, स्पेशली बोट, सी बोट पे जो प्रिजनर होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी शिप पे प्रिजनर्स रखे जाते हैं, उसको भी ब्रिग कहा जाता है। और एक ऐसी बोट जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो और जो स्पेसिफिकली किसी पर्सन को अपहोल्ड करने के लिए सी के अंदर ही रखी जा रही है, उन चीजों को भी ब्रिग कहा जाता है। तो बेसिकली वहां पर एक बोट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो या कहीं से भी हो, ब्रिटिश एरिया से बिलोंग करती थी वो बोट, और वहां पर उसे बचा लिया गया, उस ब्रिग ने उसे बचा लिया गया। जो ब्रिग थी वो जा रही थी लंदन, और वहां पर क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे वॉयज का खर्चा लेने के लिए, तो उसने एज अ सेलर, मतलब वहां पर जो छोटा मोटा काम होता है, कुछ काम किया ताकि वो अपना वॉयज के लिए, वॉयज का मतलब होता है जो सी के थ्रू आप ट्रैवल करते हैं, उसे वॉयज कहते हैं। तो वॉयज के पैसा देने के लिए, यानी कि सी पे ट्रैवल करने के लिए उसे पैसा नहीं था, तो उसने पैसा पे करने के लिए एज अ सेलर उस बोट पे काम किया, ब्रिग जो है उस पे काम किया। तो जब तक वो लंदन पहुंचा तब तक वो बहुत एकदम गरीब किस्म का लग रहा था, ठीक है, और एकदम मतलब लग रहा था जैसे भिखारी टाइप का, वैसे उसकी हालत हो गई थी। और उसके पास $1 था पॉकेट में, ठीक है। एंड विद दैट $1 ही एट फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, ठीक है, एट एंड स्लेप्ट फॉर फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 20 मतलब एक दिन पूरा उसने उसी $1 में खाना भी खाया और रहने के लिए उसे जगह भी मिल गई। लेकिन नेक्स्ट डे उसे ना खाने के लिए कुछ मिला और ना ही कहीं सोने के लिए। तो अबाउट 10 इन द मॉर्निंग, मतलब 10 बजे सुबह, पोर्टलैंड की जो जगह है, पोर्टलैंड एक नाम की जगह है, वहां पर उसने एक बच्चे को देखा कि वो एक पियर खा रहा था। पियर, व्हाट डू यू कॉल इन पियर इन हिंदी? इफ एनीवन नोज दे कैन इन्फॉर्म अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पियर जो खा रहा था बच्चा, एक फ्रूट होता है पियर, ठीक है। तो उसने एक बाइट लिया और उसे फिर फेंक दिया वहां पर, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर नरेटर है, ठीक है, द पर्सन जिसका नाम अभी नहीं हमें पता है, तो उस पर्सन ने क्या किया यहाँ पर, उस पर्सन ने वो बहुत भूखा था, तो उसे वो पियर चाहिए था, लेकिन जब भी वो वहां पर बढ़ रहा था तो लोग उसे देख रहे थे बार बार, तो वो नहीं जा पा रहा था वहां। लेकिन अब उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि अब उसने सोचा कि अब मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं वो पियर उठा के खाऊंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने गया, वहां पर एक जो कोई पर्सन था, उसने कहा आप यहाँ अंदर आ जाइए। वहां पर एक वेल ड्रेस्ड सर्वेंट, ठीक है, एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, जहाँ पर दो सर्वेंट खड़ा था, ठीक है। उस वहां पर दो लोग थे जो अपना नाश्ता लेकर बैठे हुए थे।
तो वो जो नरेटर है उसे बहुत भूख लग रही थी, उसका ध्यान सिर्फ नाश्ते पे ही था। लेकिन जो दो जेंटलमैन थे वहां बैठे हुए जो अपना नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने बहुत दिन पहले एक बेट लगाई थी, और उस बेट से हमारे नरेटर का क्या रिलेशन है, वी विल गेट टू नो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है दे कैन आस्क मी। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी, और वी कैन मूव फॉरवर्ड। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू रीड? Yes, No, ma'am. Mukul, you can start reading it. An unusual bet. Yes, ma'am. An unusual wait. The two old gentlemen were brothers. For several days, they argued about a very strange subject. They decided to end their argument with a bet, as the English usually do. The following was the subject of the bet. The Bank of England issued two banknotes of £1 million each for a public transaction with a foreign country. England used one banknote and the other remained in the bank. At this point, Brother A said to Brother B, if an honest and intelligent stranger arrives in London without a friend and without money, except for the uh, £1 million. £1 million banknote, he will starve to death. Brother B answered, no, I don't agree. I don't agree. Brother A said, if he goes to the bank or anywhere else to change this big note, the police will put him in prison. Everyone will think he stole it. They continue arguing for days until Brother B said, I will bet £20,000 that the stranger will live for 30 days with the banknote and not go to prison. Brother A accepted the bet. He went to the bank and bought the one 10 lakh pound Million. banknote, te- Hmm. 10 million banknote pound. After he returned home and prepared a letter, then the two brothers sat by the window and waited for the right man for the bet. They saw a lot of honest faces go by, but they were not intelligent enough. Several faces were intelligent, but they were not honest. A lot of faces were honest and intelligent, but they were not poor enough. Other faces were honest, intelligent, and poor, but they were not strangers. When they saw me from the window, they thought I was the right man. They asked me question, and soon they knew my story. Finally, they told me I was the right man for the bet. I asked them to explain the bet. One of the gentlemen gave me an envelope. I wanted to open it, but he said, no, don't open it. Wait until you are in your hotel room. They read it very carefully. I was confused and I wanted to discuss the subject with them, but they didn't. I felt hurt, but because I was the subject of a joke. When I left their house, I looked for the pier on the street. It it was gone. I was quite angry with those two gentlemen. Far from their house, I opened the envelope. I saw that there was money inside. I didn't stop to read that letter. I ran to the nearest eating place. I ate and ate and ate. At last, I took out the envelope with the money to pay for my meal. I looked at the banknote and almost fainted. It was a banknote worth $5 million. I was speechless. At the I stared at the banknote. The two gentlemen had made a big mistake. They probably wanted to give me a £1 banknote. I saw the owner of eating place staring at the banknote too. We were both surprised. I did not know what to do or say, so simply give him the
note and said, "Give me the change, please." The owner applied 1,000 times. "I'm very sorry, but can't change this banknote, sir. I don't have any other money. Please change this note." The owner then said, "You can pay for this food whenever you want, sir. I understand that you are a very rich gentleman. You like playing jokes on people by dressing like a poor man. You can come here and eat all you want whenever you want. You can pay me when you want." Okay, so let me explain it clear. तो यहाँ पर क्या हुआ, बेट जो है हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर जो है, लेट मी सी इफ इट इज ओवर येट, यस आई बिलीव दैट इज ओवर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है वहां पर एक अनयूजुअल बेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि दो जेंटलमैन जो थे, जो ब्रेकफास्ट करने बैठे थे और उन्होंने इस स्ट्रेंजर को, जो हमारा नरेटर है, उसे अंदर बुलाया। उन्होंने एक बेट लगाई थी। किस चीज पर बेट लगाई थी? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 नोट जारी किए थे जो 1 मिलियन पाउंड के थे। ठीक है, दो सिर्फ नोट बनाए गए थे जो कि 1 मिलियन पाउंड के थे। उसमें से एक जो है वो यूजुअली जो एक नोट जो है वो एक फॉरेन कंट्री के पब्लिक ट्रांजैक्शन में यूज हो चुका था ऑलरेडी। एक नोट बचा था। Brother A and brother B, that means the two gentlemen were brothers and they both were arguing that अगर एक ये 1 मिलियन पाउंड का जो हमारे पास नोट है, अगर हम किसी स्ट्रेंजर को, समझदार और ईमानदार आदमी को दे देते हैं, तो वो को यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जिसमें से ब्रदर ए कह रहा था कि वो डेथ हो जाएगा, वो मर जाएगा भूख से, वो कहीं भी 1 मिलियन पाउंड नोट को चेंज नहीं करा पाएगा। तो उसे एक चोर समझ के वहां पर पुलिस के पास भेज दिया जाएगा, वो जेल चला जाएगा। बट ब्रदर बी डिड नॉट अग्रीड एंड ब्रदर बी ने क्या कहा कि वो 30 डेज यानी कि 1 मंथ 30 डेज वो पूरा उस 1 मिलियन डॉलर के नोट से कुछ भी कर सकता है और जेल नहीं जाएगा। So they waited for several days to find an honest and intelligent and a strange person who was poor enough so they can give this note to that person to look if he survives or not. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो लोग वेट किए कि इस तरह का कोई इंसान मिले जो ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है और स्ट्रेंजर है यानी कि अनजान है उस जगह से, और पुअर भी है। तो वो देखना चाहते थे। उनकी आपस में 20,000 पाउंड की बेट लगी कि स्ट्रेंजर जो है वो सर्वाइव कर पाएगा इस नोट के साथ या नहीं कर पाएगा। तो व्हेन दे फाउंड द नरेटर, हमारा जो नरेटर है उसको जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये परफेक्ट पर्सन है हमारे बेट के लिए। So they gave the note to him in an envelope, और उन्होंने ये चीज समझाई नहीं। That means they didn't explain him the bet. उन्होंने बस पैसे उससे दे दिए और कहा कि बाद में जाके खोलना। तो जैसे ही उसने देखा कि वहां पर अंदर में, जब वो बाहर निकला उन जेंटलमैन के घर से, तो वहां से जैसे ही वो थोड़ा दूर गया, उसने एनवलप देखा। पहले उसने स्ट्रीट पर उस पियर को, उस फ्रूट को देखा कि क्या वो वहां पर है या नहीं। तो उसने नहीं देखा कि वो फ्रूट जो है वो अब वहां पर स्ट्रीट पर नहीं है। तो उसे गुस्सा आने लगा। पहले तो उसे लगा कि वो लोग जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। फिर उसको लगा कि मेरा जो एक लौता चीज था जो मैं खा सकता था वो भी चला गया। तो फिर उसे और गुस्सा आने लगा। फिर जैसे ही वो थोड़ा दूर गया, उसने एनवलप में पैसे देखे। उसने पूरा नोट नहीं रीड किया, उसने ना ही पूरा नोट देखा कि उसने कितने का नोट है। उसने बस वहां पर पैसे देखे और वो नियर सबसे नजदीकी जगह जहां पर उसे खाना मिल सकता था वहां पर वो गया और उसने आराम से पेट भर के पूरा खाना खाया। उसके बाद जैसे ही वो पे करने गया तो उसने देखा कि वहां पर $5 मिलियन वर्थ एक नोट रखा है उस एनवलप में। और वो शॉक के मारे बस देखता रहा उसको। उसे लगा कि जो दो जेंटलमैन थे उनसे गलती से ये नोट चला गया। उन्होंने 1 पाउंड का नोट देने की कोशिश की होगी, यहाँ तो 5 मिलियन पाउंड का नोट चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर इज अ डाउट इन व्हाट शुड बी डू। तो यहाँ पर उसे लगा, जो
हमारा नरेटर है उसने इतना ही कहा कि मेरे पास यही नोट है, आप इसी का मुझे चेंज दे दीजिए, जो फूड ओनर है, जो फूड स्टॉल ओनर है। लेकिन उसने कहा कि सॉरी मेरे पास इतना चेंज नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। नाउ हियर द ओनर थॉट दैट ये जो पर्सन है, जो हमारा नरेटर है, वो एक्चुअल में एक रिच पर्सन है, लेकिन वो लोगों को जो मजाक करने के लिए या लोगों से मजाक करने के लिए पुअर की तरह दिखता है, बस ड्रेसअप करके आता है, और लेकिन है ये बहुत रिच जेंटलमैन। तो उसने कहा कि आप कभी भी आके यहाँ पर पे कर सकते हो, कभी भी आके आप खाना खा लीजिए, आप जब मन चाहे तब पे कर सकते हैं। So this was happened after he got the note. Understood? Let's move on to the third part. If you have any doubt, you can ask me. If you don't have any doubt, just raise your hand. You can read the third part. Yes, Nidhi, would you like to read? You can unmute yourself. All the students who would like to read, they can raise their hand. Yes, Ruchi, start reading from here. मैम ऑन प्रॉब्लम The मैम third part. हाँ बच्चे बोलो। मैम जो पाउंड बना था तो 1-1 मिलियन का ही था ना मैम, दो तो यहाँ पे 5 मिलियन का पाउंड कैसे निकल गया मैम? नहीं, 1 मिलियन का 2 नोट था। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये 5 मिलियन के 2 नोट थे, जिसमें से एक जो है वो कहीं पब्लिक ट्रांजैक्शन में, अब पब्लिक ट्रांजैक्शन विद फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंट्री को उन्हें कुछ पैसे देने होंगे, और उस ट्रांजैक्शन में वो 5 मिलियन नोट खर्च हो गया। बाकी का 5 मिलियन जो नोट बचा था वो उन ब्रदर्स ने बैंक से लाकर इस बंदे को दे दिया, हमारा नरेटर जो है उसे दे दिया। 1 मिलियन के मतलब 1 मिलियन वर्थ के 2 नोट बचे थे, ठीक है। 1 मिलियन वर्थ के नोट थे। वर्थ मतलब इनका एक्चुअल मनी जो है वो 1 मिलियन था, यानी कि 2 नोट थे, तो इसको हाफ में डिवाइड कर दिया गया मेरे ख्याल से। देयर वर 2 बैंक नोट्स ऑफ अ मिलियन पाउंड। यस, 2 बैंक नोट्स ऑफ मिलियन पाउंड, मतलब कि 2 नोट थे जिनका एक्चुअल वर्थ मिलाकर 1 मिलियन पाउंड हुआ था। तो मैम फिर एक को ही 5 मिलियन पाउंड का कैसे मिल गया मैम? 2 ही नोट थे ना, वो एक नोट जो था, एक नोट ऑलरेडी खर्च हो चुका था, ठीक है। फॉरेन कंट्री को कुछ पैसे देने थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड को कुछ पैसे देने थे किसी फॉरेन कंट्री को, तो उन्होंने 2 नोट बनाए जो कि टोटल नेट वर्थ जिसका 1 मिलियन पाउंड था, ठीक है। और उसमें से एक नोट उसने खर्चा कर दिया फॉरेन कंट्री को कुछ पैसा देने में। कोई एक फॉरेन कंट्री थी जिसे उन्होंने पैसे देने थे, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा डील हुआ हो सकता है कोई, हाँ। तो वही एक नोट बचा था जो कि उन ब्रदर्स ने लाकर इस बंदे को दे दिया, हमारे नरेटर को दे दिया। So let's read about the letter here. Yes, Ruchi, start reading here. When I left the eating place, I hurried to the house of the two gentlemen. I wanted to correct the mistake they had made. I was very nervous. When I arrived, the same servant opened the door. I asked for the two gentlemen. They are gone, the servant said. Gone where? Oh no, on a journey. But where did they go? To the continent, I think. The continent? Yes, sir. When will they return? In a month. A month on this. Oh, is this awful? How can I talk to them? It's extremely important. I cannot help you. I don't know where they are, sir. They then I must see a member of the family. All the family are away. They are in Egypt and India, I think. Before leaving, the two gentlemen made an enormous mistake. They will certainly return home tonight. Tell them that I can here to correct the mistake. I will return tomorrow. I will tell them if I see them, but I won't see them. Sir, you must not worry. Because everything is all right. They will be there here on time and they will see you there. Goodbye. I was confused. My head was in a fog. I did not understand what the servant told me. The letter, I remember the letter. This is what it is said. You are intelligent and honest man. You are also poor and a stranger. In this envelope, you will find some money.
Yours only for 30 days. At the end of 30 days, return to his house. I have a bet on you. If I win this bet, you can have any job with any salary that you want. There were no signature, no addresses, no date on the letter. How strange. I did not know what to think. I went to a park, sat down and thought about what to do. After an hour, I reached the decision that follows. The two old gentlemen are playing a game that, that I don't understand. They are betting on me, but at that me I did not know anything about the details of the bet. If I go to the Bank of England to return the banknote, the bank will ask me lot of questions. If I tell the truth, no one will believe me, then will put me in asylum. If I tell a lie, the police will put me in a prison. I cannot even give it to anyone because no honest person will want it. I can do only one thing. I must keep the bill for a whole month and I must not lose it. If I help the old man to win his bet, he will give me the job I want. The idea of an important job with a big salary made me happy. With With this exciting idea in mind, I began walking down the streets of London. Okay, so this is at the end of third part, I think. Yes. तो यहाँ थर्ड पार्ट में हमने लेटर के बारे में पढ़ा, जो हमारा लेटर है, जो कि उस दो जेंटलमैन ने हमारे नरेटर को दिया था उस नोट के साथ। तो वहां पर जब वो उस फूड प्लेस से जहां पर उसने खाना खाया हमारे नरेटर ने, वहां से वो सीधा उन जेंटलमैन के घर गया। तो वहां पर जो सर्वेंट है, यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा है कि जो सर्वेंट है उसे ये ऑर्डर दिया गया है कि उस पर्सन को अंदर नहीं आने दिया जाए या हमारे बारे में नहीं कुछ बताया जाए। तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन में यही बताया जा रहा है कि जो दोनों जेंटलमैन हैं वो कॉन्टिनेंट चले गए हैं, उनकी जो फैमिली है वो इजिप्ट या फिर इंडिया चली गई है। एंड द सर्वेंट इज ओनली रीअश्योरिंग दैट जो हमारा नरेटर है उसे वो यही बोल रहा है कि ऑन टाइम आपको दोनों जेंटलमैन मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो कंफ्यूजन में लेटर खोल के पढ़ता है और लेटर में ये लिखा रहता है, लेटर में जो पर्सन है वो सिर्फ इतना बताता है कि फॉर 30 डेज यानी कि 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जितने पैसे इन्वेलप में है ये तुम्हारे हैं। 30 दिन बाद तुम इस घर पे वापस आओगे तो तुम पे मैंने एक बेट लगाया है एंड इफ यू विन आई विल गिव यू एनी जॉब और सैलरी दैट यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी जॉब और एक अच्छी सैलरी के लालच में आकर जो हमारा नरेटर है वो बस इतना ही समझता है कि जो ओल्ड जेंटलमैन हैं वो शायद कुछ अपना जोक कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं किसी चीज का। मैं अगर बैंक के पास गया ये नोट लेकर तो वो सोचेंगे कि अगर मैंने सच बताया तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ और मुझे असाइलम में डाल देंगे, और अगर मैंने झूठ बोला तो वो मुझे कैद में डाल देंगे, प्रिजन में डाल देंगे। तो the only option that the narrator had, हमारा जो नरेटर है उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। यहाँ पर क्या ऑप्शन बचता है कि वो इस बिल को अपने पास पूरे महीने रखे, जो बिल मतलब जो नोट है उसे अपना 1 महीने अपने पास रखे, घुमाए ना, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जो ओल्ड मैन है वो उसे सैलरी, अच्छी सैलरी वाला जॉब जो है दे देगा। अंडरस्टूड? आई होप देर इज नो डाउट हेयर। यहाँ पर कुछ भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वी आर जस्ट रीडिंग अ स्टोरी। So let's move on to part 4. Is there anyone who would like to read? I hope everyone is able to understand. यहाँ पर अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, they can ask me any question. Yes, part 4 कौन read करेगा? Every time I passed in front of a tailor, I wanted to enter and buy some new clothes, but I had no money to pay for them. The £1 million banknote in my pocket was useless. I passed in front of the same teller 6 times. At last I entered. I quietly asked if they had an old unattractive suit that no one wanted to buy. The man I spoke to nodded his head, but he didn't speak. Then another man looked at me and nodded his head. I went to him and he said, "One moment, please." After some time, he took me to a back room. He looked at several ugly suits that no one wanted. He chose the worst for me. I really wanted a suit, so I said nothing.
It was time to pay. Can you wait a few days for the money? I have not got any small change with me. The man said, oh, you have not? Well, I thought gentlemen like you carried large change. My friend, I replied, you can't judge a stranger by the clothes he wears. I can pay for this suit, but can you change a large banknote? Oh, of course we can change a large banknote, he said coldly. I gave him the banknote. He received it with a smile, a big smile that covered his face. When he read the banknote, his smile disappeared. The owner of the shop came over and asked me, what's the trouble? There is not any trouble. I am waiting for my change. Come, come, give him the change, Todd, quickly. Todd answered, it is easy to say, but look at the banknote. The owner looked at the banknote, then he looked at my package with the ugly suit. Todd shouted, you are stupid? How can you sell the unattractive suit to a millionaire? Todd, you can't see the difference between a millionaire and a poor man. I applied, sir, the owner continued. Please take off those things you are wearing and throw them in the fire. Put on this fine shirt and this handsome suit. It's perfect for you, simple but elegant. I told him I was very happy with the new suit. Oh, wait until you see what we can make for you in your size. Todd, bring a pen and a book. Let me measure your leg, your arm. I didn't have a moment to speak. The owner measured me. Then he ordered his tailors to make me morning suits, evening suits, shirts, coats, and other things. But my dear sir, I said I can order all these things only if you change my banknote, or if you can wait a while before I pay you. Wait a while, I will wait forever. That's the word, Todd. Send these things to the gentleman addresses. Let the less important customer wait. What? What? Your addresses, sir? I am changing my home. I will come back and give you my new address. I replied. Quite right, sir, quite right. Let me show you to the door, sir. Good day, sir. Good day. Okay, so this part we are reading here ki how he is utilizing the bank note only for the show. Okay, written here 1 million pound roll. I don't know why it is written here two things. I believe either यहाँ पर miscorrection हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 5 million वाला जो नोट है यहाँ पर miscorrection हुआ है, या फिर उसे पता नहीं था कि वो 1 million नोट है या 5 million नोट. Okay, so let's leave that part for my research. I will let you know in the next class what is the correct one here. तो यहाँ पर जब वो नोट लेके घूम रहा था तो उसने क्या किया कि टेलर के पास वो बहुत बार आसपास गुजरा, टेलर की दुकान के पास. उसे नए कपड़े लेने थे लेकिन उसके पास ऑब्वियसली पैसे में वही पैसा था, वही एक नोट था. 6 बार जब वो उस सेम टेलर की दुकान के पास गया तो एट लास्ट वो अंदर गया और उसने ये पूछा कि कोई ऐसा उनके पास सूट पड़ा है, पुराना सूट जो कोई नहीं पहनना चाहता. तो एक पर्सन जो वहां पर गेट पे जो पर्सन खड़ा था उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है. फिर जो नेक्स्ट पर्सन वहां पर जो सेल्समैन होगा उसने बुलाया तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास एक ऐसा सूट है जो कोई नहीं पहनता. तो उसने एक बैक रूम से एक बहुत पुराना सा भद्दा सा सूट निकाल के उसे दे दिया, बट उसने कुछ नहीं कहा. जो नरेटर है उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा चलो ठीक है. तो जो जब वो पे करने जाता है तो वो कहता है कि आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, मेरे पास चेंज नहीं है. तो जो पर्सन है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास चेंज नहीं है तो बड़े नोट हैं क्या? मुझे लगा कि आपके पास बड़े नोट होंगे. तो उस हमारे नरेटर ने बहुत आराम से कहा कि तुम्हें लोगों को कपड़ों के लेकर जज नहीं करना चाहिए, कपड़ों को देखकर जज नहीं करना चाहिए. मैं पे कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास अभी बहुत लार्ज नोट है, बहुत बड़ा बैंक नोट है, क्या तुम उसे चेंज कर पाओगे? तो उसने कहा कि यस वी आर एबल टू चेंज द लार्ज बैंक नोट व्हाटएवर यू आर सेइंग. तो उसे लगा कि वो मजाक कर रहा था कि लार्ज बैंक नोट होगा उसको, बट जैसे ही उसने देखा कि कितना बड़ा नोट है तो उसने उसका हंसी चला गया वहां से, ठीक है, फेस उतर गया पूरा. तो ओनर जो था वो ओनर आया और कहा कि क्या परेशानी है. तो नरेटर ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपने चेंज का वेट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर जो
सेल्स पर्सन है, दैट इज टॉड। टॉड ने कहा कि आप नोट देखिए लेकिन मैं इसका चेंज कैसे दूं। तो ओनर ने जब बैंक नोट देखा और उसने वो पैकेज देखा, उसने वो सूट देखा जो वो सूट उसे दिया था टॉड ने, तो टॉड के ऊपर वो चिल्लाने लगा कि तुम कैसे एक मिलियनर को इतना खराब सूट बेच सकते हो, तुम्हें पता नहीं है कि मिलियनर और पूरे पीपल में कैसे डिफरेंस करते हैं। तो ओनर जो रहता है वो उसे जबरदस्ती लेके जाता है कि आप ये सारे जो कपड़े हैं जो आपने पहने हैं फटे पुराने, इसको आप फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए, मैं आपको इतना अच्छा नया जो है शर्ट दूंगा, सिंपल है बट बहुत एलिगेंट है। एलिगेंट का मतलब होता है जो क्लासिक लुक होता है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा शाइनी नहीं, जो सिंपल एक शर्ट पैंट वाला जो क्लासिक लुक होता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है दैट इज सेइंग कि ही इज ऑल राइट विद द परचेज दैट ही इज डन, ठीक है, वो जो पुराना अगली सूट उससे मिला है वो उस परचेज के साथ खुश है, बट जो ओनर है ही इज लिसनिंग नथिंग, ठीक है, ओनर ने कुछ नहीं सुना और उसने मेजरमेंट्स ले लिए उसके सारे, और मॉर्निंग सूट, इवनिंग सूट। Yes, one thing Britishers have this you can say this culture in their country that they have different type of suit and dresses for the ladies also for different time of the day, ठीक है। मॉर्निंग सूट जैसे जेंटलमैन के लिए होते हैं, तो लेडीज के लिए भी मॉर्निंग ड्रेसेस होती हैं, इवनिंग ड्रेसेस अलग होती हैं। तो इस टाइप के सारे उसने ड्रेसेस जो है, सारे सूट जो हैं टेलर ने ऑर्डर कर दिए हमारे नरेटर के लिए। नाउ हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो बैंक नोट है वो कहता है, नरेटर कहता है कि मेरे पास यही एक बैंक नोट है, या तो आपको चेंज कराने का वेट करना होगा या फिर आपको कुछ दिन और वेट करना होगा ताकि मैं आपको पे कर सकूं। तो ही वाज वेटिंग, द नरेटर वाज वेटिंग फॉर द सैलरी, ठीक है, ही वाज टॉकिंग अबाउट द सैलरी दैट ही वुड रिसीव इफ ही gave that $1 million note to the old person। तो यहाँ पर वो जो ओनर है वो कहता है कि सर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हमेशा के लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ, आप बस एड्रेस लिखवाइए, आई विल सेंड एवरीथिंग टू योर न्यू एड्रेस। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो कहता है कि हम जो घर है मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कल आऊंगा वापस आपको नया एड्रेस देने के लिए। तो वहां से वो फिर चला जाता है एंड द ओनर सेंड्स हिम बैक outside. This is the part 4 and we are moving to part 5. We still have time. Let's do one thing, यहाँ पर अभी end करते हैं part 4 तक, ठीक है। part 5 next class start करेंगे। Let me take the attendance and if there is anything you would like, अगर कुछ ऐसा है जो आप यहाँ पर नहीं समझ पाए, PDF तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगी, आज दोनों PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये वाला भी और लास्ट चैप्टर भी जो है वर्क ऑफ आर्ट वाला भी जो पीडीएफ है वो भी सेंड कर दूंगी। तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पार्ट 5। मैम पार्ट 2 में एक प्रॉब्लम था मैम, छोटा सा। पार्ट 2 में 1 मिनट लेट मी मैम जस्ट जो ब्रदर थे ए और बी ब्रदर मैम, उनके पास वो नोट कहाँ से आया मैम? मे बी दे वर बैंकर्स, हो सकता है वो बैंक में ही काम करते हो, इसीलिए उनके लिए आसान हो ये बैंक नोट पाना, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना बड़ा नोट है तो किसी ऐसे पर्सन के पास ही ये नोट रह पाएगा जो एटलीस्ट आप कह सकते हैं जिसके पास एटलीस्ट पे करने का इतना सैलरी हो, या तो वो बहुत रिच हैं, बहुत ज्यादा ही रिच खानदानी पैसा होगा उनके पास, या फिर वो बैंक में ही काम करते होंगे एंड दे हैड दैट काइंड ऑफ मनी और दे हैड दैट अथॉरिटी दैट दे कैन गिव दैट मनी टू दैट पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हैं कि वो पर्सन कौन थे, यहाँ पर उनका नाम भी नहीं गिवन है जिसके थ्रू हम थोड़ा आइडिया लगा सके। तो यहाँ पर ना तो नरेटर का नाम गिवन है ना ही दोनों ब्रदर्स का, हम सिर्फ इतना अज्यूमशन पे अभी चल रहे हैं कि जो दोनों जेंटलमैन हैं वो बहुत, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड टू जेंटलमैन लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वो बहुत पुराने हो, बहुत अच्छा खासा उनका बिजनेस हो, बहुत रिच हो, तो उनके पास उतना सैलरी हो या इतना उनका इनकम हो कि वो पैसा ले सकते हैं, उतना बड़ा नोट ले सकते हैं। तो वन मोर थिंग, यहाँ पर जो बैंक नोट के जो कंफ्यूजन है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, आई विल यस पार्ट 2 में ही दोनों कंफ्यूजन है, आई विल मेक दैट confusion work, ठीक है। I will find out another PDF if it shows the same thing then there is no error, अगर कुछ error होता है I will let you know about that।
So is there anyone having any other doubt? और किसी No, पर्सन ma'am. को यहाँ पर कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आई हैव टेकन द अटेंडेंस. ठीक है, लेट्स एंड दिस क्लास हियर एंड देन वी कैन कंटिन्यू, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो समझाने में 10 मिनट और लग जाएगा. तो क्लास आगे ना बढ़े, इसीलिए लेट्स end it here and we can meet in the next class. Okay. Okay.